Are you guys able to hear me? आप लोग को आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म कर दो सब. Are you able to hear me? Or are you able to see this sheet as well? Just confirm me this. Okay, I think I'm audible. Yes. Chali, we'll start with this particular chapter, which is a kind of a like very easy chapter. Agar we would have 2 hours today, so we would have easily covered it. Even in 1.5 hours, we could cover it. But since we have lost some time, around 40 minutes, so it will be difficult, I guess, to finish this. But next lecture, half of the next lecture, we will be able to finish this particular chapter. This is very easy chapter. Basically, I'll tell you the major part where the questions will be coming from. Okay, in case of your board exams, yes, definitely the entire chapter is important because there are some very theoretical questions because there is no concept involved here. Like biotechnology and everything, you have concept involved, like you have to understand the process how it is. But in these kind of chapters, these are like more or less if you remember, you had a subject called EVS, right? So ये EVS जैसा एक सब्जेक्ट है and it is also the same level जो 6th standard के जो बच्चे पढ़ते हैं वही level, because most of the things you already know in this particular chapter. So I have made a very simple, it's around I think 10 pages. 10 pages is the entire chapter is there. You need to understand some basic concepts and I will tell you from exactly where the questions are coming from. So आप just उसको mark कर लेना, ठीक है, whenever you are practicing some questions. So don't miss that particular chapter, ठीक है, that particular topic instead. Okay, so basically इस chapter की need कैसे आई अपने को? See, if you see from 1900 till now, our population has increased a lot, right? Our population has increased a lot, not our only, but entire world. But we are at a like tremendous pace with it. We are like very fast, right? You all understand that. So उस चीज को काउंटर करने के लिए what happened was कि अगर लोग number of people are increasing, right, number of people are increasing, तो food demand is also going to increase, है ना? अगर लोग बढ़ रहे हैं तो खाने की जो चीजें हैं, राइट, उसकी भी रिक्वायरमेंट हमें ज्यादा होगी, करेक्ट है, सिंपल लॉजिक है. बट इफ यू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ लैंड विच वी हैव, इट्स मोर और लेस सेम, राइट? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, मोर और लेस की वो भी क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चरल लैंड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू रेसिडेंशियल एरियाज, राइट? जितना भी एरिया में आप मे बी आप अभी रह रहे हो, दैट मस्ट हैव बीन एन एग्रीकल्चर एरिया अर्लियर, राइट? वो कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करने के लिए वो एरिया यूज हो रहा होगा. But at present if you see that completely everything is industrialized, ठीक है, हर जगह पे रेसिडेंशियल चीजें आ चुकी है. Why? Because of the increase in population, correct? So अब देखो यार, अगर लैंड हमारा उतना ही है, अगर हमारा लैंड बल्कि कम हो रहा है, बट हमारे नंबर ऑफ पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन दोज लैंड और फॉर गेटिंग देयर फूड, वो अगर ज्यादा हो रहे हैं, तो व्हाट थिंग यू नीड टू डू, आपको क्या चीज करनी पड़ेगी? तो सिंपल चीज है, आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी. जो वो लैंड था, एक 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में अगर आप वीट उगा रहे थे, मान लो 1000 kgs पर से, अब 1000 kgs एक और हेक्टेयर से उगा रहे थे, सो अभी आपको एटलीस्ट आपकी स्पीड 3 टाइम्स करनी पड़ेगी. सो 1 एकड़ से आपको अराउंड 3000 kgs ऑफ राइस और वीट आपको निकालना पड़ेगा, राइट? इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ये कोई फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं, इट्स जस्ट एन एग्जांपल. सो ऐसा होगा कि वही लैंड से आपको आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, आपको आपकी यील्ड बढ़ानी है. एंड दिस इज नॉट रिगार्डिंग ओनली लैंड, हम सिर्फ प्लांट्स की बात नहीं कर रहे हैं. सी, देयर आर पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन फूड, ऑन एनिमल्स एज वेल, लाइक पीपल हैव मीट, एग्स, है ना, हनी, everything, fishes and all. So there are many things just we are dependent on animals as well for our food requirement, and most of us, we are dependent on plants. Definitely that's our day to day food, right? Like be it pulses, be it cereals, everything comes from plants, and some people have it from animal source as well. So उनका प्रोडक्टिविटी भी हमें बढ़ाना पड़ेगा. सो उनकी प्रोडक्टिविटी, लाइक नंबर ऑफ पीपल ईटिंग chicken, or if you say eggs, those number is also increasing, so we need to increase that thing as well. So वो सब चीजों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट? उन सब चीजों को हम क्या अपने साइंस को यूज करके उस चीज को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीजें आने वाली है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है? बहुत ही इजी चैप्टर है. स्टार्टिंग कुछ हाफ ऑफ द पार्ट डील्स विद द एनिमल पार्ट and half of the thing deals with the plant parts, and it is a very easy like very easy
चैप्टर इफ यू से, ठीक है। सो ठीक है, यही चीज आपको एक्सप्लेन की हुई है। ग्रोइंग पॉपुलेशन रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड टू फुलफिल द बेसिक नीड्स, ठीक है। फूड बेसिक नीड है, तो सबको इसकी रिक्वायरमेंट थी। हम एनिमल्स और प्लांट्स पे बेस्ड हैं अपने फूड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए, सो हमें इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो पहला पार्ट जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर का विल बी डीलिंग विद द एनिमल का प्रोडक्शन। अब एनिमल में देखो, यहाँ पर सबसे पहली चीज आ जाती है व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। विल स्टार्ट विद एनिमल हस्बेंड्री। सो जो भी टॉपिक है उसके नीचे उसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन दी होती है, बट दैट बेसिक डेफिनेशन इज, मैंने क्योंकि ये इट्स अ लाइक रिवीजन नोट्स, सो ये डिटेल में नहीं होता है। जब आप इसे लिखने जाओगे तो आपको एक प्रॉपर वे में ये लिखना है, प्रॉपर सेंटेंस बना के लिखना है, ऐसे रफली नहीं लिखना है आपको, सो दैट द सेंटेंस ऑल्सो थोड़ा वो स्पेस भी ले, ताकि ऑफ कोर्स जितना बड़ा आंसर होगा टीचर आपको उतने ही मार्क्स देता है, ठीक है। बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, डिपेंड्स ऑन द टीचर एज वेल। सो एनिमल हस्बेंड्री कुछ नहीं है, देखो ब्रीडिंग करेंगे हम और रेस करेंगे किसका, लाइफ स्टॉक का। अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म था, लाइफ स्टॉक से, लाइफ स्टॉक माने क्या भाई, लाइफ स्टॉक मतलब क्या। अब लाइफ स्टॉक में पहले देखो क्या आता था, हमारे जो बफेलोज हैं, काउ, पिग, हॉर्सेस, कैटल, शिप्स, जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जिनसे हम कोई ना कोई प्रोडक्ट लेते हैं, लाइक हॉर्सेस वी यूज, ठीक है, इधर उधर जाने के लिए, वी डोंट यूज मतलब पीपल यूज, एंड वी हैव शीप्स जिससे हम मीट के उस पे भी यूज करते हैं, शीप से बेसिकली हम वूल निकालते हैं, गोट को हम खाते हैं, and we have camel for milk and other things as well, we have buffaloes, cows and pigs। so ये इन सब की बहुत सारी चीजें हैं जो हम humans as a थिंग हम इनसे डिराइव करते हैं, तो ये सारी चीज आ जाती है लाइफ स्टॉक में। बट ये थी अर्लियर डेफिनेशन, पहले बोला करते थे भाई ये है लाइफ स्टॉक, ठीक है, कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की अगर हम ब्रीडिंग करें, ब्रीडिंग मतलब आप समझते हो, ब्रीडिंग मतलब उनकी उनकी ग्रोथ करना, नंबर उनका नंबर बढ़ाना, लाइक उन, ठीक है, समझ रहे हो ना, ब्रीडिंग मतलब क्या है, उनको रेयरिंग करना, उनकी ब्रीडिंग करना, ताकि उनकी पॉपुलेशन हम इंक्रीज कर पाए, राइट, ठीक है। सो एंड रेजिंग, तो रेजिंग सिंपल टर्म है, रेजिंग मतलब उनको ग्रो करना। अब रेज, अब एक छोटे बच्चे को रेज करते हो, दैट मींस यू प्रोवाइड हिम न्यूट्रिशन, राइट, यू प्रोवाइड हिम गुड फूड जिससे वो बड़ा हो जाता है, तो वही उसकी रेजिंग है। यहाँ पे भी रेजिंग का टर्म वही है कि आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दो, आप उसको प्रॉपर एनवायरमेंट दो रहने का, ठीक है, आप उसकी प्रॉपर केयर करो, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी एंड एवरीथिंग अगर आप ये दो, तो उनकी रेयरिंग जो होगी, अब गुड न्यूट्रिशनल फूड अगर आप प्रोवाइड करोगे तो उनकी रेयरिंग, उनकी रेजिंग बहुत अच्छे से होगी, ठीक है। तो यही एनिमल हस्बेंड्री, ब्रीडिंग, रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। तो अर्लियर लाइफ स्टॉक में सिर्फ इन्हें ही हम कंसिडर करते थे, जो ये जो है ना, ये बफेलो, काऊ, ये सब। बट अब रिसेंटली हमने क्या किया है, वी हैव आल्सो इंक्लूडेड पोल्ट्री। पोल्ट्री आप समझते हो, पोल्ट्री एंड फिशरीज भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है अभी। पोल्ट्री इज योर, जो भी डोमेस्टिकेटेड फाउल होते हैं ना, जो ये क्या बोलते हैं, चिकन हो गया, टर्की हो गया, गीस हो गया, तो ये सारी चीजें ये पोल्ट्री में आ जाते हैं। इससे हम मीट भी डिराइव करते हैं और इससे हम एग्स भी डिराइव करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें पोल्ट्री में आ गई। देन वी हैव फिशरीज। अ फिशरी डज नॉट डील विद ओनली फिशेस, तो ये यहाँ भी कंफ्यूज मत हो जाना, फिशरीज डज नॉट ओनली मीन फिशेस, राइट। फिशरीज इन्वॉल्व्स, हम क्रैब्स भी पकड़ते हैं, क्रैब्स कम्स अंडर क्रस्टेशियंस, राइट, ठीक है, वो पाइसेस में नहीं आते हैं, वो क्रस्टेशियंस में आते हैं। देन वी हैव मोलस्क, ठीक है, मोलस्क भी होते हैं, पीपल ईट ऑक्टोपस एंड एवरीथिंग, स्नेल एंड एवरीथिंग, सो वो सारी चीजें भी हम आजकल इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो इन सब का ब्रीडिंग एंड रेजिंग को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, 70% ऑफ वर्ल्ड का जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है कहाँ पर है जी, इंडिया और चाइना के पास है, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के पास है। 70% ऑफ द लाइफ स्टॉक किसके पास है, इंडिया और चाइना के पास है। बट हमारी प्रोडक्टिविटी देखोगे अगर आप, तो हमारी प्रोडक्टिविटी है सिर्फ 25% वर्ल्ड के कंपैरिजन में, कि वर्ल्ड को हम मतलब इनसे हम, इन 70% से हम जितना प्रोड्यूस करते हैं वो पूरे वर्ल्ड में कितना परसेंट है। अगर सोचो हमारे पास अगर 70% वर्ल्ड के लाइफ स्टॉक है, तो एटलीस्ट हमारा 70% तो स्टेक होना चाहिए हमारे प्रोडक्टिविटी में। बाकी 30% पूरे वर्ल्ड के लोग करते होंगे, पूरे वर्ल्ड की गायें वाहें भैंसें करती होंगी, बट ऐसा नहीं था। 70% हमारे पास लाइफ स्टॉक है, ऐसे ही पड़ी है, काउ, बुफेलो सब, बट वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज देम एज पर देयर एक्सट्रीम क्वांटिटी, ठीक है, हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, हम उनकी यील्ड नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो हमारी जो यील्ड आ रही थी वो सिर्फ 25% आ रही है। दिस इज वेरी सैड, लाइक आपके पास 70% वर्ल्ड का लाइफ स्टॉक है इंडिया और चाइना के पास, बट आपका जो यील्ड है, आपका जो उसमें उससे आप प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हो वो सिर्फ 25% है। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए देयर वर मेनी इनिशिएटिव्स डन बाय मेनी साइंटिस्ट,
सो जो चीज निकल के आई दैट वाज मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स, कि हम फार्म्स का मैनेज करेंगे ऑन साइंटिफिक टर्म्स। साइंटिफिक टर्म्स पे हम फार्म्स का मैनेज करेंगे और फार्म्स एनिमल को मैनेज करेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कैसे चीज आ जाती है, देयर आर सम थिंग्स कि आप फार्म मैनेज करो, राइट, वहां पे प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड दो उनको, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज दो, क्लीन एनवायरनमेंट दो उनको, ठीक है। देन एनिमल्स का इफ यू सी कि भाई जो सुपीरियर क्वालिटी ऑफ काउ है उसे सुपीरियर क्वालिटी ऑफ बुल के साथ मेट कराओ, सो दैट जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो भी सुपीरियर क्वालिटी के होंगे, करेक्ट, वो भी सुपीरियर क्वालिटी के होंगे। सो ये सारी चीजें हमें करनी है और यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला हम ले लेते हैं, दैट इज नथिंग बट योर डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी इज रिलेटेड विद मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क और मिल्क के जितने भी डेराइव्ड प्रोडक्ट होते हैं ये सारे डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आ जाते हैं। सो अब देखो कैसे हम एनालाइज करते हैं, मतलब एक डेयरी फार्म को, इस पे क्वेश्चंस आते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट पे, इस पे वो हिंदी लंबे चौड़े वाले क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप एक डेयरी फार्म को कैसे मैनेज आप करोगे, ठीक है। तो ये अपने आपके बोर्ड लेवल वाले क्वेश्चन है, इसमें नीट वीट में कुछ नहीं आने वाला। सो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या होगा, देखो सबसे पहले तो गुड ब्रीड सेलेक्ट करोगे, सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज है जो ब्रीड है आपकी, है ना, जो ब्रीड है, यानी फॉर एग्जांपल हम काऊ की लेते हैं तो एक काऊ की जो सी भी ब्रीड है वो इट शुड बी वेरी गुड ना, उसकी यील्ड हाई होनी चाहिए, मतलब इट शुड प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ मिल्क। अगर हम काऊ का एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो काऊ का हाई यील्ड मतलब उसका जो मिल्क प्रोडक्शन होगा पर टाइम, इट गिव्स मिल्क 2 times इन अ डे, इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। सो वो जो मिल्क प्रोडक्शन का उनका वो है दैट शुड बी हाई, कि भाई वो ज्यादा अच्छा क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करे। एंड अगेन इट शुड बी डिजीज रेजिस्टेंट, अगर डिजीज रेजिस्टेंट नहीं हुआ तो काउ बफेलोज में डिजीज बहुत होते हैं, है ना। तो वो डिजीज से अगर वो सफर करके तो फिर अगेन उसका मिल्क भी इन्फेक्ट हो जाएगा और उसके ऑफस्प्रिंग भी इन्फेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो वो सारी चीजें हमें देखनी है। तो हमें एक ऐसी ब्रीड सेलेक्ट करनी है जिसमें हाई यील्ड हो, जिसका मिल्क भी ज्यादा आ रहा हो और जो डिजीज रेजिस्टेंट भी ना हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो, ठीक है, जिसको इजीली कोई डिजीज लगे ना, सो दैट हमारी जो यील्ड होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी। पहली चीज आप डेयरी फार्म मैनेजमेंट में ये करते हो। फिर हाउसिंग होता है उनका, कि भाई प्रॉपरली वेंटिलेटेड वाटर एंड एयर ही उनको एक जो एनवायरनमेंट है मिले, ताकि दे कैन एंजॉय एज इन दे कैन मूव फ्रीली, यू कैन से मूव फ्रीली एंड हैव गुड फूड, इधर उधर घूमे मस्त चिल करें, सो दैट दे स्टे हैप्पी एंड दे प्रोड्यूस मोर मिल्क, राइट, बिकॉज ये सारी चीजें भी मैटर करती है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मिल्क प्रोडक्शन, ओके, म्यूट रखो अपना माइक प्लीज। हाँ, तो इट इज हाउसिंग, राइट, कि सॉरी, इट इज द फीड, कि हम उन्हें क्या खिला रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम, एक होता है रफेज, रफेज कुछ नहीं होता है जो बेसिकली जो आप चीजें जो गाय भैंस खाती रहती है, ग्रासेस ऑन ऑल, है ना, जो भी आप स्टॉक्स वगैरह हे वगैरह देते हो वो चीज होगी उसमें, दैट इज योर रफेज। एंड जो एडिशनल चीजें हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं दैट इज ऑयल केक, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन्हें चाहिए होते हैं टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क। सो ये ऑयल केक्स वगैरह आता है काउ के लिए, पीपल प्रोवाइड देम दिस आल्सो, ठीक है। तो ये फीड से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट। देन अगेन थिंग इज क्लीनलीनेस, एनवायरनमेंट क्लीन रखोगे तो अच्छा मिल्क प्रोड्यूस होगा, डिजीज फ्री एनवायरनमेंट होगा, राइट। एंड रेगुलर वेट के विजिट रहे वहां पर, जो वेटेनरी डॉक्टर है वो आए और चेक करे सब एनिमल्स को कि इज एवरीथिंग फाइन, कोई डिजीज तो नहीं आ गया है एंड ऑल। ये सारी चीजें आपकी डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आ जाती है। इसी को आपको एलैबोरेटेड फॉर्म में लिख दोगे ना तो आपका बढ़िया 5-6 मार्क्स का एक आंसर बन जाता है, करेक्ट, एक 5-6 मार्क्स का आपका एक आंसर बन जाता है। सो डेयरी में अगर आप देखोगे दो चीज हम कंसिडर करते हैं, ये देखो इस पे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए दिया हुआ है, आपको सारी वैरायटी नहीं पढ़नी है, जितनी वैरायटी मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ एटलीस्ट वो वैरायटी आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जितनी वैरायटी यहाँ पर होगी काऊ की, बफेलो की, आगे चल के जिसकी भी वैरायटी आने वाली है एटलीस्ट वो चीजें आप याद रखो, ठीक है। अब बफेलो एंड काऊ होते हैं बेसिकली जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बफेलो इज बूबुलस इसका नाम होता है, जो वैरायटी होती है इसकी, जो साइंटिफिक नेम है दैट इज बूबुलस, एंड बूबुलस रिपीट होता है, बूबुलस बूबुलस नाम रिपीट होता है। काऊ को बॉस से इंडिकेट करते हैं, जो काऊ होती है ना उसके आगे हमेशा उसका जो साइंटिफिक नेम है इट स्टार्ट्स विद बॉस ओनली। तो बॉस इंडिकस है, इंडिकस से समझ जाओ इंडियन वेराइटी है ये काऊ की, बॉस इंडिकस तो इंडियन वेराइटी, एंड ऐसे ही बहुत सारी वेराइटीज हैं। तो इंडियन वेराइटीज में अगर आप देखोगे तो वी हैव गिर, वी हैव सिंधी एंड वी हैव सहीवाल, ठीक है। एंड फॉरेन अगर वेराइटी आप देखोगे तो जर्सी नाम आपने सुना होगा, जर्सी एंड ब्राउन स्विस,
इन सब की बहुत डिस्टिंग्विश हो दिखती हैं, ये अलग अलग दिखती हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप ये गूगल कर लेना बाद में। एंड बफेलो, इफ यू सी बफेलो एंड काऊ में डिफरेंस आई होप आप लोगों को पता होगा। जो अमूल वाली होती है वो काऊ होती है, राइट? जो अमूल की एड्स वगैरह में आती है ना, वो काऊ होती है, जिसपे वो ब्लैक एंड व्हाइट पैचेस होते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है जिसकी काऊ पे ब्लैक एंड व्हाइट पैचेस हों, दैट इज अ वेराइटी। some can be black as well, some can be brown as well, some can be entirely white as well. So वो उस पे मत डिस्टिंग्विश करना, वैसे आपको डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पूछेगा नहीं आपसे। तो बफेलो की वेराइटीज, बफेलो देखो, देखा जाए तो बफेलो जो होती हैं ब्लैक कलर वाली जो होती हैं, वो डिजीज रेजिस्टेंट बहुत होती है। मिल्क प्रोडक्शन में उनका हाई होता है, और उनके फैट, मिल्क में फैट भी बहुत होता है, ठीक है। बॉस इंडिकेस ऑन दी अदर हैंड इज उल्टा, मतलब ज्यादा डिजीज रेजिस्टेंट भी नहीं होती, डिजीज बहुत इजी लग जाता है, मिल्क भी उतना प्रोडक्शन नहीं होता है, और मोर फैट, मतलब मिल्क भी उतना फैटी नहीं होता है उसका, राइट? ओके। सो जो बफेलो की वैरायटी है, इफ यू सी, मुर्रा इज देयर, मेहसाना इज देयर, सूरती इज देयर, एंड जाफराबादी इज देयर। ये सारी वैरायटीज है, इन्हें याद रखना। अगर आप आंसर में लिख देते हो तो यू हैव एन अपर हैंड फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर। आपको ये नाम अगर आप लिख देते हो तो आपको टीचर को लगेगा हाँ यार बंदा थोड़ी नॉलेज एक्स्ट्रा भी रखता है। डिजीज ऑफ कैटल बुक में नहीं है, बट लिख के आओगे तो बहुत अच्छी बात है, टीचर आपको बढ़िया मार्क्स देगा, ठीक है, समझ रहे हो? सो डिजीज ऑफ कैटल देखोगे तो वी हैव वायरल डिजीज, उसको रिंटरपेस्ट बोलते हैं, और या फिर इट इज आल्सो नोन एज कैटल प्लैग। बहुत ही डेडली डिजीज होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी जानकारी लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम याद रखो। एक बैक्टीरियल डिजीज होता है जिसका नाम है एंथ्रेक्स, इसको क्रिएट करता है, मतलब जो प्रोड्यूस करता है ये बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। ये बंदा प्रोड्यूस करता है एक डिजीज जिसका नाम है एंथ्रेक्स। ऐसे स्पॉट्स से हो जाते हैं गाँव या बुफेलो के ऊपर, तो उसमें आपको नहीं जाना है, वेटरनरी नहीं बन रहे हो अभी, अभी आप 12th कर रहे हो, सो हमें डिजीज नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये है मोर और लेस बेसिकली डेयरी फार्म मैनेजमेंट। आपके एनसीईआरटी में देखोगे एक भी वर्ड मिस नहीं हुआ है। आपके एनसीईआरटी में जो जो मेन टर्म्स हैं वो मेन टर्म्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए। इस चैप्टर को ओवरव्यू करके, हवाबाजी करके एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। आप कभी भी चेक कर लेना, कोई भी इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन है। अर्लियर दे यूज्ड टू कम, बफेलो फेलो के नाम वगैरह आते थे जो पुराने वाले नीट वगैरह में। अब तो भाई लेवल थोड़ा कहीं और ही पहुंचा हुआ है, सो अब तो शायद नहीं आते हैं, बट रिस्क नहीं लेंगे, और पढ़ा है तो पढ़ के जाना, ठीक है। ये हो गया एनिमल हस्बेंड्री देख लिया हमने। अब हम देखेंगे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। कुछ नहीं, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट जो है, अब पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में क्या होता है, पोल्ट्री इज लाइक डोमेस्टिकेटेड फाउल। फाउल मतलब बर्ड होते हैं, ठीक है। डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स हम रखते हैं, उसमें क्या क्या आ जाता है, चिकन आ जाता है, गीस आ जाता है, टर्की आ जाता है, डक्स आ जाता है। इसको हम किस लिए रेयर करते हैं, एग्स या मीट के लिए यूज करते हैं। एग्स एंड मीट हमें अगर उनसे चाहिए होता है तो इसीलिए हम उन्हें ग्रो करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं या फिर रेयर करते हैं या फिर उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, ठीक है। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में मैनेजमेंट प्रैक्टिस वही जो पिछले 5 पॉइंट थे एनिमल हस्बेंड्री वाले, ये वही 5 पॉइंट, यही 5 पॉइंट यहाँ पर भी चिपकाने हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर देना, कोई पूछेगा, बिकॉज सेम चीज है यहाँ पे भी। मतलब हैन इनकी क्या बोलते हैं, डग्स, एक मिनट, ये चिकन टर्की डग, इनकी भी आपको अच्छी वैरायटी लेनी है, इनको भी अच्छा हाउसिंग देना है, इनको भी अच्छी फीड देनी है, इनकी भी क्लीननेस देखनी है, इनकी भी रेगुलर विजिट देनी है। इनमें डिजीज बहुत होता है, बर्ड फ्लू वगैरह आपने सुना होगा ना, वो सब ये इनमें डिजीज बहुत होता है, तो इनकी पूरी वैरायटी को ही मारना पड़ता है। उसको भी एक टर्म है, मास किलिंग करना पड़ता है सबका, क्योंकि डिजीज जैसे डेंजरस होता है। कलिंग बोलते हैं उसको, कलिंग। कलिंग मतलब मास किलिंग ऑफ फाउल्स, जितने भी होते हैं उस पर्टिकुलर पोल्ट्री फार्म में, उन सबको एक साथ ही मार देते हैं, ठीक है। दैट इज योर कलिंग, लिखा हुआ है आगे रहेगा। तो फार्म प्रैक्टिस इज सेम एज एनिमल हस्बेंड्री, वही कॉपी पेस्ट कर देना। वैरायटी अगर दो जानना चाहो तो एक होता है असील, जो इंडियन वैरायटी होती है। आपने देखा होगा तो चिकन की जो फाइट होती है, चिकन फाइट, वो इसी वैरायटी से करते हैं, ठीक है। असील, असील नाम है उसका। और एक लेग हॉर्न होता है, तो बाहर की है ये, ठीक है। ये बाहर की अजीब सी होती है, वो थोड़े नॉट द वाइट कलर बट द रेड एंड ब्लैकिश कलर जो होता है, दैट इज योर लेग हॉर्न। कुछ टर्म है, ब्रॉयलर जो वैरायटी होती है, ब्रॉयलर इज एसोसिएटेड विद मीट वैरायटी, मतलब इससे इसके अंडे वंडे के नीचे ही आपको, बट इसकी इसका मीट गुड क्वालिटी होता है। लेयर्स एक होता है जिनकी एग अच्छे होते हैं, जिसको एग के लिए आप रेयर करते हो, दैट इज योर लेयर्स। एंड कलिंग इज नथिंग बट मास किलिंग ऑफ हाउस। अगर कोई डिजीज वगैरह आ जाता है तो आप उन्हें मास, मतलब बहुत सबको एक साथ किल कर देते हो, ठीक है। पोल्ट्री की कुछ डिजीज अगर आप देखो तो बर्ड फ्लू है भाई, H5N1 वायरस इसके नाम से फेमस हुआ था, ये पहले बहुत 2010-8 के आसपास हुआ था, अभी भी होता रहता, आता रहता थोड़ा बहुत।
फिर यू हैव वन रानीखेत डिजीज, को न्यू कासल्स डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है, रानीखेत डिजीज को न्यू कासल डिजीज भी बोलते हैं, दोनों वायरल डिजीज हैं, ठीक है। इतना ही याद रखना है, इसी को एलोबरेट करके अराउंड 5-6 मार्क्स पे अगर क्वेश्चन आ जाता है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट का, आपको लिखना है। कोई भी बेसिक टर्म्स इसमें मिस नहीं हुआ है, आप एनसीईआरटी में भी चेक कर लेना, अगर कोई टर्म आपको लगता है कि नहीं समझाया गया है तो यू कैन मैसेज मी, बट आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से शुरू हो जाता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे एनसीईआरटी मतलब आपके बोर्ड लेवल पे तो क्वेश्चंस आने ही आने हैं, कोई फॉर श्योर आने हैं, ठीक है। मतलब आज ही लिख के अगर दे सकता हूँ मैं तो साइन भी कर सकता हूँ कि इस पे तो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। और देर आर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि आपके नीट पे भी इस पे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अगर चैप्टर पढ़ रहे हो तो कुछ ऐसे किसी नहीं देने के लिए तो रखा नहीं है उन्होंने चैप्टर, कुछ तो रीजन होगा इस चैप्टर को रखने का, दो इट इज वेरी इजी बट स्टिल कुछ तो रीजन होगा ही एनसीईआरटी के पास इस चैप्टर को डालने का, तो क्वेश्चंस तो जरूर आएंगे बोर्ड में, तो पक्का आएंगे, बोर्ड की तो कोई सीन ही नहीं है, वहां तो पक्का आएगा। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे ध्यान दोगे सब, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आएगा आप अभी के अभी मुझे रोक के आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, सो एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग, से आप समझते हो, ये एग्जांपल सबको पता होगा। ये म्यूल का जो एग्जांपल है, इसमें क्या क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, एक हॉर्स लिया और एक डोंकी लिया और उनकी ब्रीडिंग करवा दी। तो इससे आप समझ रहे हो कि ब्रीडिंग जो मैं टर्म बोल रहा हूँ उसमें क्या होता है एग्जैक्टली exactly? तो अब प्रोड्यूस हो गया म्यूल, ठीक है, जो दोनों के बीच का होता है, हॉर्स एंड डोंकी, यू गेट म्यूल, तो आपने ब्रीडिंग करा दी। बट दिस इज इंट्रा स्पेसिफिक, आपने दो अलग अलग स्पीसीज की वो करवाई, समझ रहे हो, आपने दो अलग अलग स्पीसीज की ब्रीडिंग करवा दी, तो वो कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट लेके आ जाता है, वो हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीडिंग, वही टॉपिक है, सॉरी, ठीक है। एनिमल ब्रीडिंग में देखेंगे ब्रीडिंग ऑफ डिफरेंट वेराइटी टू यील्ड अ गुड एंड डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ ब्रीड। अब ये थोड़ा सा लॉजिक समझो कि आपको ब्रीडिंग करनी क्यों है, व्हाट इज द नीड फॉर ब्रीडिंग, आपको ब्रीडिंग क्यों करनी है। अब देखो एक और एग्जांपल अगर आप जानना चाहो ना, एक कुत्ता मतलब एक डॉग होता है, इसका नाम है पॉम हस्की। अब आप समझ जाओगे किसका ब्रीड हुआ है, पॉम इज पोमेरियन, हस्की इज हस्की, सो उसका नाम है पॉम हस्की। अब वो दिखता हस्की जैसा है, मतलब द कलर इज ब्राउनिश एंड हस्की जैसा, समझ लो फॉक्स जैसा जो दिखता है हस्की, बट उसके वो बाल एंड एवरीथिंग इज सिमिलर एंड द साइज इज सिमिलर टू योर पोमेरियन, व्हाइट कलर वाले जो होते हैं। तो पॉम हस्की दैट इज योर ब्रीडिंग, ठीक है, वो आपने ब्रीडिंग करी है, ओके। सो अब आप इसमें देखोगे इसकी इसकी नीड क्या है। तो बेसिकली देखो जो नीड क्या है, कि अगर आप कंसिडर कर रहे हो कि यू हैव अ सुपीरियर क्वालिटी ऑफ मेल काउ, यू से बुल, बेसिकली यू से, और आपके पास एक फीमेल काउ है और एक बुल है, इन दो आपके पास बहुत सारे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे हैं, बट यू विल ऑब्जर्व कि चलो आपके पास 10 लोग हैं, देर आर टू टू थ्री बुल्स एंड देर आर 7 to 8 7 अराउंड काउज एंड बफेलोज, काउज ही मोस्टली पकड़ते हैं, ज्यादा स्पीसीज नहीं बदलते हम, एक ही स्पीसीज में रहते हैं। सो आपके पास वो है, सो व्हाट यू विल सी इज यार कि भाई ये जो बुल है, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज इन, भाई ये तो ना ही डिजीज, इसको कोई डिजीज होता है, ठीक है, इसकी डाइट भी प्रॉपर बढ़िया है, ठीक है, इससे जो ऑफस्प्रिंग जो, क्योंकि बुल इज अ मेल, तो ही विल गिव हिज सीमेन सो दैट ऑफस्प्रिंग विल बी बोर्न, सो उसका जो सीमेन है वो भी काफी क्वांटिटी प्रोड्यूस होता है, सो इट कैन like fertilate many cows instead of only one। सी इनमें इनसे आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन हम करवाते हैं, बेसिकली अगर आप डिटेल्स जानना चाहो, इनमें जो नेचुरल इंटरकोर्स होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, हम आर्टिफिशियली ब्रीड करवाते हैं। कैसे ब्रीड करवाते हैं, जो भी क्या बोलते हैं, हमारा जैसे डिजायर्ड बुल है कोई, लाइक वी हैव अ बुल, तो उसका हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू इज, अब हम उसको देख रहे हैं कि हाँ दिस पर्टिकुलर बुल इज वेरी स्ट्रांग, ठीक है, his his semen is also of very good quality, the offspring produced from his semen are also very healthy and everything। तो ये बंदा आपका हो गया डिजायर्ड बुल, आप इसको साइड में लेके रख दोगे, हाँ भाई ये 10 लोगों में से ही इज द गाय, ही इज द पर्सन जो बहुत ही स्ट्रांग है, इसको ले लो साइड में रख लो इसको, ठीक है। देन यू विल सी
अच्छा हाँ, ये 7, देयर आर 7 काउज व्हिच आर गिविंग यू मिल्क। आप देखोगे यार इसमें से यार एक पर्टिकुलर काउ नंबर 5 इज प्रोड्यूसिंग अ गुड क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड गुड क्वालिटी एज वेल। ठीक है, तो आप वो 5 में से उसको उसको इधर ले लोगे, हाँ भाई इधर आ जा काउ, इधर आ जा। अब आप क्या करोगे, इस इन दोनों में करा दोगे इंसेमिनेशन, यहाँ से स्पर्म उठा के यहाँ डाल दोगे। ठीक है, वो एक केमिकल, क्या वो केमिकल नहीं होता, एक फिजिकल एक्शन है जो नेचुरली बिल्कुल नहीं होता है, और आर्टिफिशियली करवाते हैं। ठीक है, वहां से सीमेन कलेक्ट करना और यहाँ पर डाल देना टू इनिशिएट फर्टिलाइजेशन, राइट। सो अब आप क्या करोगे, क्यों अब आपने ये क्यों करा, आपने ये दो सेलेक्ट क्यों करे, आपने इसलिए सेलेक्ट करे ताकि आपको जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, अब ऑफस्प्रिंग सिंपल लॉजिक है ना यार, अगर इसका सीमेन है इसका ये है, तो इसके आधे क्रोमोसोम इसके, आधे क्रोमोसोम इसके हैं, करेक्ट है, मेल के आधे फीमेल के हैं, तो जो कैरेक्टर्स डेवलप होंगे दे विल बी सुपीरियर। कि मतलब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, एक तो वो वेरी बहुत ही हट्टा कट्टा होगा बिकॉज ऑफ द बुल, बिकॉज बुल बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का है, डिजीज रेजिस्टेंट है। ऑफ कोर्स आपने मिल्क अपने जो फीमेल वर्जन, फीमेल काउंटर पार्ट जो लिया है वो भी वो है जिसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, इसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो आप उसको भी ले लोगे। तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, डेफिनेटली नॉट एवरी ऑफस्प्रिंग, आई मस्ट से ये चीज भी याद रखना कि यार अगर उनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दोनों पेरेंट्स से आइडेंटिकल होंगे, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। फिर इसका डोमिनेंट भी आ सकता है, इसका रिसेसिव भी आ सकता है, इसका रिसेसिव भी आ सकता है, इसका डोमिनेंट भी आ सकता है। कॉम्बिनेशन आपको पता है, आप लोगों ने वो चीजें आई थिंक आई होप आपने समझ ली है। तो इट इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, वो तो डेफिनेटली नहीं होंगे। बट हम चाहते हैं कि हमारा जो डिजायर्ड कैरेक्टर है दैट इज मेल साइड से क्या डिजीज रेजिस्टेंट एंड फीमेल साइड से गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क, हमें ये दो चीजें चाहिए। तो जब इन दोनों का आप मीटिंग कराओगे एंड यू विल सी अराउंड, चलो फॉर एग्जांपल कि इनके 3 से 4 बच्चे हो गए, ठीक है, इनके 3 से 4 ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड। सो आप उन 3 से 4 में देखोगे कि हाँ भाई यार इन 3 में से नंबर 2 वाला इज हैविंग डिजीज रेजिस्टेंट, इसको कोई डिजीज नहीं हो रहा है, बाकियों को डिजीज हो गया। फिर आप देखोगे नंबर 2 में एक और चीज अच्छी है कि मिल्क प्रोडक्शन इज वेरी हाई, है ना, जरूरी नहीं है ना बच्चा विल बी मेल ओनली, फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये मत डाउट मन में मत रहना। जितने भी बच्चे उनकी प्रोड्यूस हुए लाइफ टाइम में, उनकी लाइफ टाइम में, तो यू विल ऑब्जर्व कि हाँ अगर ये वाली वेराइटी वाज वेरी नाइस। तो 4 में से इफ यू गेट टू डिजायर्ड वेराइटी, सो ये 2 डिजायर्ड वेराइटी को आप रख लोगे साइड में, रख लोगे मतलब अब इनको साइड में कर दोगे। फिर आप क्या करोगे, इन दो जो ये 2 आपके डिजायर्ड आए हैं, अब इसमें डिजायर्ड कैरेक्टर किसके हैं, इनके पेरेंट्स के। इनके पेरेंट्स कहाँ से उठाए आपने, यहीं से उठाए। इनके पेरेंट्स आपने क्या किया, एक बुल ले लिया और एक फीमेल काऊ ले ली, और इन दोनों में मेटिंग करा दी। इनके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, इनके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए उसमें 4 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए फॉर एग्जाम्पल, उसमें से दो उसमें से उन दो में वो कैरेक्टर्स था जो आप डिजायर कर रहे थे, दैट इज डिजीज रेजिस्टेंट एंड हाई गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो ये 2 को आप करोगे साइड में। ये 2 ऐसा नहीं है कि दे विल नॉट प्रोड्यूस मिल्क और दे विल नॉट हैव सीमेन ऑफ गुड क्वालिटी, ये भी होगा, बट दे विल एंटरटेन देयर ओन लाइफ, ये अपना एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ। तो ये जो 2 आपके डिजायर्ड वाले थे, इनको आप क्या करोगे, इनको फिर से आप मीटिंग करवा दोगे। अब ऑफिशियली हुए तो ये लॉजिकली तो दीज आर ब्रदर सिस्टर, राइट। अगर वैसे देखा जाए तो दीज आर ब्रदर सिस्टर ओनली, बट ह्यूमन एज अ ग्रीडी पर्सन व्हाट वी डू इज हम इनमें ही मीटिंग करा देते हैं। ठीक है, हम इनमें ही मीटिंग करा देते हैं। तो हमने मीटिंग करा दी इनमें भी। ठीक है, आपके जो डिजायर्ड रिजल्ट आए थे बाय क्रॉसिंग द मेल एंड फीमेल, जो 2 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, 4 प्रोड्यूस हुए, उसमें से 2 आपके डिजायर्ड वाले हैं, उन 2 को आप फिर से मीटिंग करा दो। ठीक है, उन 2 ने प्रोड्यूस किए 6, उनके 6 बच्चे आ गए। 6 में से चलो फिर आपके 4 बच्चे डिजायर्ड कैरेक्टर वाले आ गए, 2 वाले अनडिजायर्ड आ गए, वो 2 वालों को साइड में किया, ये 4 आ गए, इन चारों को फिर से अपनी मीटिंग करा दी। तो ऐसे करते करते आपने क्या किया, 4 से 6 जनरेशन आप लोगों ने ऐसे ही ब्रीडिंग करवाई, 4 से 6 जनरेशन आपने ऐसे ही ब्रीडिंग करवाई। इसके बाद 4 से 6 ब्रीडिंग सीजन कराने के बाद होगा क्या कि आपके जो डिजायर्ड कैरेक्टर है ना वो ज्यादा दिखने लग जाएंगे,
समझ रहे हो? बिकॉज देखो एक जनरेशन में इट इज डिफिकल्ट, एक जनरेशन में ये होगा कि आधे कैरेक्टर मेल के आगे आधे फीमेल के आगे, तो आधे डिजायर्ड आएंगे आधे अनडिजायर्ड भी आएंगे, सिंपल चांस है ना। ऐसा भी हो सकता है 70% कैरेक्टर डिजायर्ड आ गए, 30% अनडिजायर्ड आ गए। चलो ये तो एक एक जनरेशन की बात थी। मान लो सेकंड जनरेशन, अब उसमें आप देखोगे अरे चलो 80% डिजायर आ गए, 20% अनडिजायर्ड आ गए। फिर आप देखोगे चलो नेक्स्ट सीजन थर्ड जनरेशन में आ गए, यहाँ पर 90% डिजायर्ड कैरेक्टर आ रहे हैं, 10% अनडिजायर्ड कैरेक्टर आ रहे हैं। आप चलोगे बहुत बढ़िया, फिर आप फिफ्थ जनरेशन की मीटिंग करवाओगे, वहां आप देखोगे 99% वही कैरेक्टर आ रहे हैं, जितने भी बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं जो आपके डिजायर्ड कैरेक्टर 99%। ठीक है, फिर आप उन्हें 2-3 जनरेशन और कराओगे, तब तक कराते रहोगे जब तक यू डोंट गेट अ प्योर लाइन। अब नाउ व्हाट इज अ प्योर लाइन? प्योर लाइन मतलब भाई अभी जो जो भी वैरायटी मेट कर रही है, जो भी वैरायटी की ब्रीडिंग हो रही है, दे विल जो गिव द ऑफस्प्रिंग, वो ऑफस्प्रिंग होंगे होमोजाइगस कैरेक्टर वाले, होमोजाइगस सुपीरियर कैरेक्टर वाले। मतलब उनके जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे सब में वो डिजायर्ड कैरेक्टर होगा। कौन सा? हाई क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड डिजीज रेजिस्टेंट। समझ रहे हो? जब ये हो जाएगा 4 से 6 जनरेशन के बाद, तब आपके पास एक होमोजाइगस सुपीरियर कैरेक्टर वाली एक प्योर लाइन डेवलप हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, एक ही एंसेस्ट्रल फैमिली मतलब चली आ रही है, एक ही एंसेस्ट्रल फैमिली, एक ही फैमिली है, उसी में आप कंटिन्यूअसली इनब्रीडिंग करा रहे हो, राइट? उसी उसी फैमिली के अंदर आप ब्रीड करवा रहे हो, इसीलिए इसका नाम भी दिया गया है इनब्रीडिंग। मतलब उसी फैमिली के अंदर, उसी एंसेस्ट्रल फैमिली के अंदर आप ब्रीडिंग करा रहे हो, सो एज टू ऑब्टेन अ प्योर लाइन। समझ रहे हो? सो एज टू ऑब्टेन अ प्योर लाइन। सो इनके जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे इस पूरी फैमिली के स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन वाले पेरेंट्स टिल द सिक्स जनरेशन वाले द न्यू पेरेंट्स, जो न्यू जनरेशन लेटेस्ट जनरेशन है, तो इन सबके ऑफस्प्रिंग जितने भी प्रोड्यूस होंगे सारे सुपीरियर कैरेक्टर वाले होंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग। अब इसमें क्या किया, इसने अपने कोई ब्रीड नहीं बदली है, राइट? इसमें अपने कोई ब्रीड नहीं बदली है, अपने सेम ही ब्रीड, ठीक है, अपने सेम ही ब्रीड में क्रॉस कराया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉग के कंसिडर कर रहे हो तो आपने लैब्राडोर ही लिया, आपने लैब्राडोर ही लिया, और आपने लैब्राडोर को लैब्राडोर से ही मेट करवाया, आपने लैब्राडोर को पिटबुल से मेट नहीं करवाया। ठीक है, अपने लैब्राडोर को पिटबुल से वो नहीं कराया। ठीक है, लैब्राडोर एंड पिटबुल स्पीसीज इज सेम, ठीक है, दे आर डॉग्स ओनली, स्पीसीज इज सेम। समझ रहे हो? द एंटायर थिंग इज स्पीसीज इज सेम, कि भाई हाँ स्पीसीज सेम है, ये भी डॉग है, आप मेट करवा सकते हैं बिकॉज स्पीसीज सेम है। तो हाँ देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि इनका फर्टिलाइजेशन होगा। ऐसा नहीं आप किसी को भी फर्टिलाइज कराओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। दे शुड बी ऑफ अ कॉमन एंसेस्ट्रल फैमिली, कॉमन में कोई एक कॉमन क्या बोलते हैं लीनिएज होना चाहिए। तो जो डॉग्स हैं सारे एक ही फैमिली में आते हैं, एक ही स्पीसीज में आते हैं, जस्ट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीड्स तो वो अपने आप डेवलप हो जाती है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल एंड अदर में एनी फैक्टर्स, तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स प्रोड्यूस हो जाती है। तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, आपने देखा कि यार हाँ ये वाला जो लैब्राडोर है इट हैज अ नाइस फर, इसके जो हेयर लॉस है उतना नहीं हो रहा है, एंड दे आर वेरी डिजीज रेजिस्टेंट एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड एवरीथिंग। आपने डिजायर्ड अपने लैब्राडोर लिए, बट आपने डिजायर्ड लैब्राडोर ही लिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इन ब्रीडिंग करवा रहे हो, राइट? आप और कुछ नहीं करा रहे हो, आप इन ब्रीडिंग करवा रहे हो, मतलब ब्रीड विल बी सेम। समझ रहे हो? ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कंफ्यूज होगा जब आप सारे पढ़ लोगे, अभी तो एक ही पढ़ रहे हो इसलिए समझ में आ रहा होगा। तो इन ब्रीडिंग मतलब अपने सेम ही ब्रीड में आपने मेटिंग करवा दी। वाई क्यों करवाई? सो एज टू गेट सुपीरियर क्वालिटी इंडिविजुअल। तो इसका प्रो क्या है, इसके प्रोस क्या है कि क्यों करवाते हो भाई सुपीरियर क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल कराते हैं, बट इसके कॉन्स भी कुछ होते हैं। इसके कॉन्स ये हैं यार, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब यार आप एक ही फैमिली में कंटिन्यूअसली, बिकॉज एक ही एंसेस्ट्रल फैमिली है, एक ही एंसेस्ट्रल फैमिली में आप कंटिन्यूअसली ब्रीडिंग करा रहे हो, डेफिनेटली एक ऐसा टाइम आएगा जब आप वहां पर जो फीमेल्स होंगी उनकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि उनमें दूसरा क्या बोलते हैं जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसमें वैरायटी है ही नहीं, है ना, उसमें कोई वैरायटी है ही नहीं। आप एक ही फैमिली में कंटिन्यूअस ब्रीडिंग करवा रहे हो, तो एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग कराने की वजह से उस पूरी फैमिली में एक डिप्रेशन आ जाता है। वो डिप्रेशन इज इन फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड फर्टिलिटी।
तो अब जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने लगेंगे ना, वो ऑफस्प्रिंग की नंबर उतना नहीं होगा। हाँ, दे विल हैव सम काइंड ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर। हाँ, वो भी क्या होगा, डिजायर्ड कैरेक्टर अभी थोड़ा थोड़ा स्लो होने लगेगा, कि डिजीज थोड़ा बहुत आने लगेगा, फिर मिल्क क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी, वो सब चीजें। तो 3 6 7 जनरेशन के बाद ये प्रॉब्लम आप फेस करोगे। तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आप क्या करते हो? पहले तो मुझे ये बता दो कि ये इनब्रीडिंग समझ में आया कि नहीं। आई वांट कंफर्मेशन इन विद अ yes or no in the chat section, because I don't know कि आप लोग पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। सो yes or no, इनब्रीडिंग समझ में आया कि नहीं आया? इन द चैट सेक्शन प्लीज कंफर्म मी। इनब्रीडिंग समझ में आया कि नहीं? आ गया, राइट? सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं होगा। सेम ब्रीडिंग को, सेम ब्रीडिंग के सुपीरियर क्वालिटी की मीटिंग करवाते गए 4 से 6 जनरेशन, सो एज टू गेट अ होमोजाइगस सुपीरियर कैरेक्टर। और यही होमोजाइगस सुपीरियर कैरेक्टर की बाद में प्योर लाइन डेवलप हो गई। बट इसी की वजह से एक इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ गई, बिकॉज आप एक ही फैमिली में कंटिन्यूसली मीटिंग करवा रहे हो ना, एक ही फैमिली में कोई साला डिफरेंट वो आ ही नहीं रहा है, डिफरेंट वेराइटी आ ही नहीं रही है, राइट? डिफरेंट वेराइटी ऑफ जीन्स आ ही नहीं रहे हैं, कोई रिकॉम्बिनेंट बन ही नहीं रहा है ना? क्योंकि सारी वेराइटी एक जैसी बनने वाली है, सब में एक ही कैरेक्टर आने वाले हैं, समझ गए? तो इसका कौन है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन से हो जाता है क्या? रिड्यूस्ड फर्टिलिटी, फर्टिलिटी हो जाती है रिड्यूस। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने का भी एक वेराइटी, एक अच्छा खासा आइडिया है कि ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो आ गया है, इसको ओवरकम करेंगे, कैसे करेंगे? इसको ओवरकम करने के लिए होता है, इसको ओवरकम करने के लिए इन ब्रीडिंग इज द सेम ब्रीड के अंदर करवाना। देन वी हैव द अदर वेराइटी व्हिच इज कॉल्ड एज आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग में 3 वेराइटी आती है, जिसको बोलते हैं हम आउट क्रॉस, देन वी हैव क्रॉस ब्रीड, एंड वी हैव इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग। अभी देखो, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक यानी इंटर स्पीसीज के बीच में ब्रीडिंग करवाना। तो इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग में एग्जांपल याद रख लो, कुछ भी नहीं, म्यूल, है ना? आप एक हॉर्स को एक डोंकी से मेट करवा रहे हो सो एज टू गेट अ म्यूल, तो इंटर स्पेसिफिक आपने 2 अलग अलग स्पीसीज की मेटिंग करवा दी, समझ रहे हो? समझ रहे हो? 2 अलग अलग स्पीसीज की मेटिंग करवा दी, ठीक है? आपको और भी एग्जांपल दूंगा आगे, ठीक है? अब देखो, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को बचाने को, ओवरकम करने के लिए, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ठीक करने के लिए क्या करते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ठीक करने के लिए हम करते हैं आउट क्रॉस, ठीक है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन करने के लिए हम करते हैं आउट क्रॉस। क्या करते हैं? इट इज डन टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसमें क्या होगा? मेटिंग ऑफ सुपीरियर क्वालिटी विद अनरिलेटेड वेराइटी ऑफ द सेम ब्रीड। अब समझ रहे हो? अब ये आउट क्रॉस भी हो रहा है, ये भी सेम ही ब्रीड में हो रहा है, बट सेम ही ब्रीड में हो रहा है बट अनरिलेटेड वेराइटी। याद है हमने 10 का एग्जांपल लिया था, वी हैड 7 cows एंड वी हैव 3 bulls, वो चीज याद है आप लोगों को? 7 और 3 टोटल 10, देयर वर 10 इंडिविजुअल्स, 10 cows और 10 dogs, कुछ भी एग्जांपल ले लो। तो वो 10 थे, उसमें से आपने सेलेक्ट कितने किए स्टार्टिंग में? आपने 2 पेरेंट सेलेक्ट किए, यस और नो? कंफर्म करो मुझे जल्दी से। आपने 2 सुपीरियर क्वालिटी सेलेक्ट की ना उन 10 लोगों में से? 10 लोगों में से आपने 2 चीज सेलेक्ट की ना, एक तो सुपीरियर फीमेल और एक तो सुपीरियर मेल, राइट? आपने वो 10 सेलेक्ट की, बचे हुए 8 हैं। वो 8 लोग याद है आप लोगों को? वो हमारे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, वो 8 लोग याद हैं? वो 8 भी तो सेम ही ब्रीड है, वो 8 भी सेम ही ब्रीड है, वो 8 भी आपस में मीटिंग कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। वो 8 लोग भी आपस में मीटिंग कर ही रहे होंगे, उनकी भी एक डिफरेंट फैमिलीज ऑफ सीरीज ऑफ फैमिली चल रही होगी। तो बस यही करना है। इसकी वैरायटी जो डिप्रेशन में आ गई है, ये वाली वैरायटी, इस वैरायटी को उठाना है और किसी भी अनरिलेटेड सेम ब्रीड के साथ मीटिंग करवा देनी है, ठीक है? मान लो बफेलो काउ नंबर 1 और बुल नंबर 10, 1 और 10 के जो फैमिली चलती हुई आ रही है, उसकी जितनी भी जनरेशन है, उनमें से किसी भी जनरेशन वाली फैमिली की काउ काउ या बफेलो को या बुल को उठाओ और इन दोनों में ब्रीडिंग करवा दो। बस आपका इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ओवरकम हो जाएगा, बिकॉज देयर विल बी कंटिन्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स जिससे इंटर क्रॉसिंग होगी, ठीक है? जिससे क्रॉसिंग ओवर होगा, डिफरेंट कैरेक्टर्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड एवरीथिंग। तो ये है आपका सिंपल आउट क्रॉस। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को हटाने के लिए आप उसको अनरिलेटेड वेराइटी ऑफ द सेम ब्रीड के साथ क्रॉस करवा देते हो, दिस इज योर आउट क्रॉस, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा। सेकेंड चीज अगर देखते हैं, दैट इज योर क्रॉस ब्रीड। नाम से समझ में आ रहा है भाई? नाम से समझ में आ रहा है, क्रॉस ब्रीड मतलब आप ब्रीड के बीच में क्रॉस करवा रहे हो। तो यहाँ पर ब्रीड डिफरेंट हो गई है, यहाँ पर ब्रीड डिफरेंट हो गई है, राइट? यहाँ पर ब्रीड डिफरेंट हो गई है, ओके?
तो यहाँ पर वो वाले एग्जाम्पल, ये वाले एग्जाम्पल आएंगे जो मैं आपको बोल रहा हूँ। पॉम हस्की जिसका नाम है, पॉम एंड पोमेरियन एंड हस्की, दीज आर बेसिकली डॉग्स, राइट। ये कोई डिफरेंट डॉग्स एंड कैट की मीटिंग नहीं हो रही है, डॉग्स की मीटिंग हो रही है। तो ये हो गया क्रॉस ब्रीड के एग्जांपल्स, ठीक है, ये क्रॉस ब्रीड के एग्जांपल्स हो गए। फॉर एग्जांपल ये शिप का नाम है मेरिनो, मेरिनो रैम्स और बीकानेरी ईव्स, ये शीप की वैरायटी, इन दोनों को क्रॉस कर देते हैं, ठीक है भाई, ये दोनों शीप ही है, ये दोनों शीप ही, बस ये थोड़ी ब्रीड अलग है। फॉर एग्जाम्पल डॉग्स के अगर एग्जाम्पल लेते हो तो मान लो यू हैव अ लैब्राडोर एंड यू हैव अ पिट बुल। तो लैब्राडोर और पिट बुल का आप क्रॉस करा दो, है तो भाई डॉग ही है, प्रोड्यूस भी डॉग ही करने वाले हैं। तो भाई वो जो वैरायटी आएगी दैट विल बी अ लिटिल डिफरेंट, उन दोनों के कैरेक्टर्स होंगे। तो ये होता है क्रॉस ब्रीड। ये भी उसी लिए करवाया जाता है कि भाई क्या पता दोनों के डिजायर्ड कैरेक्टर आ जाए इसके अंदर, है ना। जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर आप डिजायर करते हो, जरूरी नहीं है वो डिजायर्ड कैरेक्टर डॉग्स में क्या होंगे, डॉग्स का तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, डॉग्स, ठीक है, डॉग्स की भी ब्रीडिंग होती है बट, है ना। तो हिरसा डेल करके एक वैरायटी आती है शीप की, हिरसा डेल, वे इन दोनों के क्रॉस की वजह से आती है, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग। तो डिफरेंट ब्रीड को क्रॉस कर दिया, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग यार बहुत सिंपल है, दो अलग मतलब अलग ही दुनिया वाले स्पीसीज को उठा के उनमें ब्रीडिंग करवा दो। फीमेल हॉर्स को मेल डोंकी से करा दो, फीमेल हॉर्स को मेयर बोलते हैं, मेल डोंकी को जैक बोलते हैं, मेयर और जैक में ब्रीडिंग करवा दो, प्रोड्यूस होगा कौन, म्यूल, राइट, म्यूल। देन यू हैव व्हाट, देन यू हैव, ये यूजुअली क्या होता है, मेल का नाम आगे के दो लेटर्स होते हैं, ये वाले मेल के नाम होते हैं, पीछे वाले फीमेल का नाम होता है। तो ये होता है हिनी, हिनी इज अ मेल हॉर्स, एच से हॉर्स, और डोंकी ये के वाई ये जो भी है, हिमी, हिमी है, हिनी ऐसा कुछ नाम होता है इसका, हिनी, ठीक है। मेल हॉर्स ले लो, फीमेल डोंकी ले लो। फिर ये लाइगर होता है, इसमें मेल लायन होता है और फीमेल टाइगर होती है। फिर होता है टाइगॉन, इसमें मेल टाइगर होता है और फीमेल लायन होती है, टाइगॉन। तो ये सारी वैरायटी प्रोड्यूस होती है, ऐसे कोई नाम नहीं है, ठीक है, गॉट इट। तो ये आपके सारे डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीडिंग के ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे वो यहीं पे आएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आने वाले हैं ना, वो MOET से ही आने वाले हैं। क्या आपने कभी सुना है व्हाट इज MOET? हैव यू एवर हर्ड व्हाट इज MOET? सुना होगा, आई थिंक सो। सुना है, नहीं सुना है? जब नहीं सुना तो भी कर देंगे। अब देखो MOET का फुल फॉर्म जानना है तो मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। अब देखो यार, हमने जो वो मैं आपको बता रहा था, जो हम इन ब्रीडिंग कर रहे थे, सोचो इन ब्रीडिंग कर रहे थे, उसमें आपको 6 से 7 जनरेशन लग गए टू गेट अ सुपीरियर क्वालिटी। 6 से 4 जनरेशन मतलब बहुत, काओ एंड बफेलो का जेस्टेशन पीरियड बहुत होता है, ठीक है, साल साल लग जाते हैं, साल नहीं 9-10 महीने इतना ही होता है, एग्जैक्टली आई डोंट नो। तो वो जिनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन टिल द बर्थ, जो जेस्टेशन पीरियड होता है उनका, दैट इज वेरी लॉन्ग। तो भाई इतना टाइम, 6 से 7 जनरेशन मतलब कम से कम 5-6 साल तो हो गए। 5-6 साल तक वेट करोगे टू गेट अ सुपीरियर क्वालिटी, और तब भी आपको ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, 3 या 4 ही मिलेंगे। अगर आप एक ही फैमिली का कर रहे हो, अलग अलग आप बहुत लोगों का कर रहे हो तो एक डिफरेंट बात है, ठीक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए एक टेक्निक आई थी जिसका नाम है, आई थी नहीं अभी भी चल रही है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। होता क्या है, दो चीजें हो रही है इसमें। सबसे पहले तो ओव्यूलेशन मल्टीपल हो रहे हैं। ओव्यूलेशन मतलब एक 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 नॉर्मल डे टू डे साइकिल नहीं, मतलब जो भी साइकिल होता है, हाउ मेनी एग्स आर प्रोड्यूस्ड, इफ एनीवन कैन टेल, एक साइकिल में हाउ मेनी एग्स आर प्रोड्यूस, वी नो द नंबर ऑफ स्पर्म, इट इज वेरी मच, है ना, it is in lakhs, because it has to go through many things to reach till the egg. But how many eggs or how many ovules are produced in one cycle? Anyone can tell? Like, this is very simple. Anyone wants to answer? How many eggs are produced? Humans का तो पता होगा भाई, उनका छोड़ो, humans का पता होगा ना, humans का बता दो, एनिमल ही है हम भी। How many eggs are produced in a single cycle? I got one answer, बाकी लोग
एक ही आंसर मिलना, बाकी किसी को नहीं आता यार। सिंगल एग, हाँ 1, करेक्ट, गुड। आकांक्ष एंड गायत्री, आई गॉट ओनली 2 आंसर्स फॉर दिस। हाँ, सो सिंपल लॉजिक भाई, जो एग होता है वो 1 साइकिल में एक ही रिलीज होता है, ठीक है, एक ही रिलीज होता है। दो रिलीज हो मतलब दो रिलीज नहीं होता, बट हाँ देर आर सम कंडीशन जिसमें आपके ट्विंस बॉर्न होते हैं, तो उसमें वो एक ही एग 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है, समझ रहे हो, डिवाइड हो जाता है वो एग, ठीक है। तो दैट इज, हाँ हाँ आई नो, वो ट्विंस वाला केस है, ठीक है। तो बेसिकली इन जनरल एक ही एग रिलीज होता है, फिर एक ही ओव्यूल रिलीज होता है। बट यहाँ पर हम क्या करें, मल्टीपल ओव्यूलेशन, हम ऐसा कुछ करेंगे कि मल्टीपल ओव्यूल्स प्रोड्यूस हो, पहली थिंग। और फिर हम करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर। दो चीजें हो गई, पहले तो ओव्यूल हमने मल्टीपल किए, उसके बाद एम्ब्रियो को हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। हाँ, काउ में भी एक ही होता है, काउ में भी एक ही होता है, एक ही ओव्यूल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक ही काउ निकलती है यार, इतनी बड़ी बच्चे निकलते हैं, उनके कितने निकलेंगे। हाँ बट ट्विन के केस उसमें भी होते ही हैं, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, काउस के भी ट्विंस निकल जाते हैं। ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स का मैंने सुना नहीं है, बट निकलते होंगे, गॉड नोज, ठीक है। सो दो चीजें याद रख लो यहाँ पर, मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। टेक्निक इज टेक्निक, टेक्निक सबको पता है। हाँ जी, मल्टीपल ओव्यूलेशन कैसे करेंगे, सुपीरियर काउ उठा लिया, हाँ भाई ये रही आपकी डिजायर्ड काउ, इसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत बढ़िया है, ठीक है, हाई क्वालिटी ऑफ मिल्क है, हाई क्वांटिटी ऑफ मिल्क है। हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, उसको आप ले लोगे साइड में, ले जाओगे अपने लैब में, लैब में नहीं मतलब वेटरनरी क्लिनिक पे, हाँ जी। वहां पर आप क्या करोगे, उसको आर्टिफिशियली दोगे एफएसएच लाइक हार्मोन्स। ये नाम तो सुना ही होगा, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यस और नो, याद है, होगा यार डेफिनेटली। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हाँ जी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एग्स रिलीज करते हैं, एग्स रिलीज करते हैं, बिकॉज ये हार्मोन्स इतनी क्वांटिटी में दिया जाता है काऊ को, ताकि वो एक एग के बजाय, सॉरी, एक एग के बजाय कम से कम 6 से 8 एग प्रोड्यूस करें पर साइकिल, पर साइकिल, ठीक है। तो वो 6 से 8 एग प्रोड्यूस करने को हम बोलते हैं सुपर ओव्यूलेशन। सुपर ओव्यूलेशन मतलब नॉर्मली तो एक ही एग आना चाहिए, बट बिकॉज हमने एफएसएच करके, एफएसएच डाल के उसकी बॉडी में हमने उसको इंड्यूस किया कि वो 6 से 8 एग या फिर ओवम रिलीज करे, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सुपर ओव्यूलेशन। तो पहली चीज सुपर ओव्यूलेशन। अब आप क्या करोगे, एक सुपीरियर बुल को ले आओगे, आ जा भाई, आ जा तू भी, आ जा साइड से, सुपीरियर बुल को ले आओगे। सुपीरियर बुल ऐसा नहीं है, ये मल्टीपल ओव्यूलेशन तब काम आती है, मान लो यार आपका बुल बैठा है कहीं हरियाणा में, बैठा है बुल, ठीक है, वहां के स्ट्रांग होते हैं बहुत, एंड आपकी काओ बैठी है यहाँ कहीं यूपी बिहार में, समझ रहे हो, या फिर बैठी है अपने महाराष्ट्र में। तो अब भाई कैसे इनमें, कैसे करोगे, इसको वहां लेके जाओगे, उसको यहाँ लेके जाओगे, नहीं कुछ नहीं करना, काओ को वहीं रहने दो, यहाँ से इसका निकालो स्पर्म, ले जाओ वहां पे, स्टोर हो जाता है फ्रीजर में मस्त ठंडा चिल, इसको ले जाओ वहां पर, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर देते हैं। टेक्निक बहुत ही होगी, आई होप मैक्सिमम लोगों ने देखा भी होगा वो, इट्स अ लॉन्ग काइंड ऑफ अ सिरिंज, यू पुट इट एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, ठीक है। तो ऐसे किया जाता है, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट होता है, बिकॉज जो रेगुलर इंटरकोर्स जो पॉसिबल है इनके केस में, दैट इज नॉट फीजिबल, मतलब वो उतना रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता है देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करने का। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करने से हम अपना डिजायर्ड कैरेक्टर डालेंगे, हम सुपीरियर मेल का क्या बोलते हैं, स्पर्म रिलीज करेंगे, सुपीरियर मेल का, है ना, स्ट्रॉन्ग बुल का वो रिलीज करेंगे, ताकि ऑफस्प्रिंग में स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस हो। हाँ जी, आपने क्या करवा दिया, सुपीरियर काउ को एफएसएच देख के उसके 6 से 8 एग रिलीज करवा दिए पर साइकिल। सुपीरियर बुल को इधर बाजू से ले लिया अंदर, हाँ भाई तू भी आ जा, उससे निकाल लिया उसका सीमेन, ठीक है। उस सीमेन को भी आप क्या करोगे, आर्टिफिशियली उस पर्टिकुलर सुपीरियर काउ के अंदर डाल दोगे, दैट इज योर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हाँ जी, जो भी सीमेन होंगे, 8 एग है तो 8 सीमेन, 8 एग को जाके फर्टिलाइज कर देंगे जी। फर्टिलाइजेशन के बाद एक चीज आती है जिसका नाम होता है जाइगोट, नाम भी इसका भी सुना ही होगा, है ना। जाइगोट लोगे आप, लोगे नहीं, अंदर होगा प्रोड्यूस वो। तो जाइगोट क्या करेगा, जब 8 से 32 सेल स्टेज में आ जाएगा, मतलब जब वो मोस्टली एम्ब्रियो बन चुका है, ठीक है, अब वो एम्ब्रियो बन चुका, अब भाई इसको आप कंटिन्यू अंदर रहने दोगे ना, तो क्या होगा, वो काऊ के अंदर 6 से 8 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएंगे, वो 6 से 8 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएंगे। ऐसा मेडिकली तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, दैट इज मोर और लेस दो सबकी डेथ ही हो जानी है अगर ऐसा हो भी गया तो गलती से, ठीक है। तो क्या होता है,
अब मल्टीपल ओव्यूलेशन आपने कर लिया, अब एम्ब्रियो बन चुका है, एम्ब्रियो को करेंगे हम ट्रांसफर। अब ये 6 से 8 एम्ब्रियो आप लोगे, एम्ब्रियो के स्टेज पे आप उससे निकालोगे और 6 से 8 डिफरेंट डिफरेंट काउज में जाके डाल दोगे। डिफरेंट डिफरेंट काउ या बफेलो जिसका भी लिया है आपने, उनमें जाके डाल दोगे। तो जो जिसको आप बोलोगे सरोगेट मदर, जिसको आप बोलोगे सरोगेट मदर, तो 6 से 8 सरोगेट मदर में डाल दोगे। सो अब एक 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 साइकिल में जहां पर आप एक एग रिलीज होता तो आपका एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता, आपने उतने ही टाइम में 6 से 8 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर दिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो कितनी बढ़िया बात हुई? जहां आप एक प्रोड्यूस कर रहे थे वहां पर आपने 6 से 8 प्रोड्यूस कर दिए उतने ही टाइम पीरियड में, उतने ही टाइम पीरियड में। ठीक है, क्या टेक्निक यूज करके? MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। नाउ कंफर्म मी कि ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं। आई वांट कंफर्मेशन फ्रॉम एवरीवन। जिसका नहीं आया मैं उसका नाम ले लूंगा बीच में भी। जिसको समझ में आ गया मुझे बता दो जल्दी से, एक एक करके। जिसका नाम आता रहेगा मैं क्लिक करता हूँ। जल्दी बोलो, ये चीज समझ में आई कि नहीं? ओके, सोनाली को आ गई, और नेहा, ओके, गायत्री, गुड, आकांक्षा। So single cow will give birth to how many offspring? एक ही पॉसिबल है। ये 6 से 8 डिफरेंट डिफरेंट काउज में डाल दिया जाएगा। हाँ ठीक है, शी ऑल्सो गॉट इट। अंजलि, प्रीति, यू गाइज आर देयर और नॉट? पता नहीं, आई गेस इन्होंने ऑन करके एंड दे आर बिजी इन देयर ओन थिंग्स, सो डजंट मैटर। जिनको समझना था उनको समझ गया, तो लेट्स मूव अहेड, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, सो दिस वाज द मेजर टॉपिक। इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं एमओईटी पे, एमओटी पे बढ़िया बढ़िया। ठीक है, इससे आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये चीज आप याद रखना। हाँ जी, अब देख लो दिस बी कीपिंग। बी कीपिंग सबको पता है, बी कीपिंग। सो नॉर्मल तो छत्ते लग जाते हैं जिसपे हनी मिल जाता है जंगलों वंगलों में, बट वो तो भाई नेचुरल प्रोसेस है। उसको टाइम भी लगता है, थोड़ा रिस्की भी है, बिकॉज कंट्रोल्ड कंडीशन में नहीं हो रहा है। और कहाँ जंगलों में जाके ढूंढते रहोगे हनी? हनी तो चाहिए यार, न्यूट्रिशनली इतना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, बी वैक्स वगैरह, है ना, न्यूट्रिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डेली डे टू डे लाइफ में यूज भी बहुत होता है। तो ये हो गया बी कीपिंग। दिस इज ऑल्सो अ टेक्निक जिसमें आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है बहुत सारे होते हैं, बी वैक्स, हनी एंड एवरीथिंग। सो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं एपीकल्चर। एपी इसलिए बिकॉज इनका नाम एपिस होता है, बी को नाम होता है एपिस। जो इंडियन वेराइटी है जो बहुत पॉपुलर है, दिस एपिस इंडिका। बाकी वेराइटी भी है, एपिस मेलिफेरा है और एक दो और है, बट ये बढ़िया वाली वैरायटी अपनी एपिस इंडिका। ठीक है, इंडियन वैरायटी काफी अच्छा क्वालिटी ऑफ हनी प्रोड्यूस करती है। हाँ जी, अब इसमें ये 5 पॉइंट सीधे के बुक से कॉपी पेस्ट किए आपके एनसीईआरटी की, चीज याद रखना। तो अगर आपको बी कीपिंग करना है, आपको एग्रीकल्चर एपीकल्चर करना है, तो भाई आपको ये थोड़ी बहुत चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले नॉलेज एंड नेचर एंड हैबिट ऑफ नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिट ऑफ बीज। अब बी में अगर आप देखोगे ना, बी हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड। इफ आई टेल यू, इस पे डॉक्यूमेंट्रीज हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी बी की हैबिट पे, किसी ने देखी है? देर आर लाइक डिफरेंट, मतलब ये अपने ये बोल तो नहीं पाते हैं, बट ये अपने एक्शन से, ये अपने एक्शन से थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बीज के ग्रुप को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है, वो इन्हें आता है। हाँ, वो जो बॉक्सेस में रखा जाता है, करेक्ट, यस, वही 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 वही। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है। कि इनमें क्या होता है कि यार देखो, ये डांस बहुत, ये ऐसे राउंड राउंड घूमती है, दैट मीन्स समथिंग। ये अगर ऐसे 8 के शेप में घूमने लग जाती है, दैट मीन्स समथिंग, है ना। तो इसमें किंग का कंसेप्ट होता है, किंग नहीं सॉरी, क्वीन का कंसेप्ट होता है, क्वीन होते हैं, फिर वर्कर बीज होते हैं, फिर कुछ फीमेल बीज होते, मेल बीज होते हैं, फीमेल बीज सारे वर्कर होते हैं। ठीक है, कुछ मेल बीज होते हैं, क्वीन होती है, बाकी सारे वर्कर बीज होते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें ये हमने डिटेल में पढ़ी थी हमारे लाइक कॉलेज टाइम में। ठीक है, बट अभी आपको उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको आंसर में ये लिखना ही पड़ेगा कि नॉलेज एंड नेचर ऑफ हैबिट ऑफ बीज आपको पता होना चाहिए कि भाई मतलब उनके उससे क्या हो रहा है। बिकॉज ये बी में क्या होता है, एक टेक्निक होती है स्वॉर्म। स्वॉर्मिंग, स्वॉर्मिंग मतलब यार ये लोग क्या करते हैं, ये ग्रुप का ग्रुप उड़ के कहीं चला जाता है जब इनका मन
हट जाता है या फिर कुछ इंसिडेंट हो जाता है इनके बीच में, क्वीन भाग जाती है, बिकॉज ये सब क्वीन पे डिपेंडेंट होते हैं, सारे लोग क्वीन पे डिपेंडेंट होते हैं, क्वीन पे डिपेंडेंट होते हैं। क्वीन कंट्रोल करती है, मतलब इन सबको क्वीन की जो स्मेल होती है उससे ये सारे अट्रैक्ट होते हैं, तो क्वीन जहां जाती है वहां वहां ये पीछे पीछे हो लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? क्वीन अगर मर गई तो जब तक नया कोई क्वीन नहीं बन जाता तब तक ये वहीं रहेंगे। तो बहुत सारे बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है इनके बीच में, ये चीज आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, देखना है डॉक्यूमेंट्री वगैरह है, देख लेना। ठीक है, तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सुटेबल लोकेशन होनी चाहिए, नेक्टर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आसपास, है ना, नेक्टर तो चाहिए हनी बनाने के लिए। कैचिंग इन हाइविंग ऑफ स्वॉम्प्स, जो ग्रुप ऑफ बीज भागता रहता है उसे पकड़ो कैसे, वो भी टेक्निक होती है, सब डॉक्यूमेंट्री में दिया हुआ है, आप देख लेना कि ये स्वॉर्मिंग कैसे, ये इनको कैच कैसे करते हैं इनके ग्रुप को। आर्टिफिशियली तो उगाते हैं बट कहीं से तो लाना पड़ेगा ना, बी थोड़ी उगाओगे घर में, बी तो लानी पड़ेगी कहीं से, तो वो बी का ग्रुप कैसे लेके आओगे वो। देन यू हैव मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स, डिफरेंट डिफरेंट सीजन में बहुत बहुत चीजें होती है भाई। अब जब सर्दी आ गई तो यार उनके वो जो डब्बे होते हैं, उन डब्बों पर बढ़िया बोरी वोरी लगानी पड़ती है। हाँ हाँ, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, नॉर्मल कहीं भी डाल देते हैं लोग, बस प्रोवाइडेड फार्म जो होता है उसके आसपास डालते हैं ताकि यार ये पॉलिनेशन में भी थोड़ी हेल्प कर दें। ठीक है, तो ये पॉलिनेशन में भी हेल्प कर देते हैं। राइट। सो मैनेजमेंट इनका आना चाहिए जब भाई डिफरेंट सीजन हो, मानसून हो या फिर विंटर हो, तो इनके उसके क्योंकि यार जो इनका देखोगे ना बी एपिस का, ये कंटिन्यूअसली वो जैसे अपने विंग्स को फ्लटर करते रहते हैं सो दैट दे कैन मेंटेन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसपे हनी प्रोड्यूस होता है। सो विंटर के टाइम पे भाई ठंडी हो जाती है तो फिर ये ज्यादा फ्लटर करते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाती है, तो फिर भी ठंडा नहीं हो पाता, गर्म नहीं हो पाता माहौल, क्योंकि यार ऑलरेडी बाहर बहुत ठंडी है। उसके लिए आप क्या करते हैं यार, इनके जो डब्बे है जो जिसके अंदर आपने अब उगा रहे हो नहीं आप, उसको ही कवर कर देते हो थोड़ा बढ़िया बोरी वोरी लगा के, ताकि थोड़ा टेम्परेचर वहाँ का राइज हो जाए। राइट। तो वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी, हाँ जी भाई, हनी तो प्रोड्यूस हो गया, अब हैंडल कैसे करोगे उसको, उसको वहां से निकालोगे कैसे, उसको स्टोर कैसे करोगे, उसको प्योरीफाई कैसे करोगे, उसको बीजोगे कैसे, वो सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए। तो दिस इज नथिंग बट योर बी कल्चर। फिर आ जाते हैं हम फिशरीज पे। फिर हम आ जाते हैं अपने फिशरीज पे। फिशरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिशरीज सबसे पहले, फिशरीज डज नॉट ओनली इंक्लूड fishes, this is also an important thing. Fisheries includes, देखो आगे क्या क्या लिखा हुआ है, it includes fishes, mollusks and crustaceans. mollusks आपको पता है, crustaceans आपको पता होने चाहिए, राइट right? तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं फिशरीज में, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है फिशरीज में। अब आपने अगर देखा हो तो फिशरीज बहुत टाइप की होती है। ठीक है, फिशरीज आपकी जो होती हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो फिशरी है, सबसे पहले इस कल्चर्ड। कल्चर्ड का मतलब होता है कि आपने इसे कल्चर किया है, आपने ऐसे नहीं आपने बोट उठाई और आप चले गए बढ़िया रिवर या किसी लेक में या फिर अपने ओपन सी में टू कैच फिश, वहां पे आपने कल्चर नहीं किया, आपने सिर्फ कैच किया है। ठीक है, दैट इज डिफरेंट थिंग। वो वाइल्ड वाइल्ड फिशरी होगी कि आप डायरेक्ट कहीं गए वाइल्ड में और आपने फिश कैच की नेट डाल के और आप ले आए उसको, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यू हैव कल्चर्ड वन इज लाइक आपने ही उन्हें ग्रो किया है। ठीक है, उन फिशेस को आपने ही ग्रो किया है, आपने ही उन्हें खाना वाना खिलाया, आपने ही उन्हें नर्चर करके बड़ा किया है, दैट इज योर कल्चर्ड। देन इनलैंड वेराइटी होती है, इनलैंड फिशरी इज लाइक रिवर वगैरह लेक वगैरह में जो होती है, फ्रेश वाटर में होती है। हाँ, फिशरमैन वाइल्ड फिशिंग करते हैं, यस वाइल्ड फिशिंग करते हैं, बिकॉज वो ओपन सी में जाके उठा लेते हैं डायरेक्ट वहां से। ठीक है, देन यू हैव फिशरीज इन सी, सी में जाके जो फिशरी आप करते हो वो भी एक वैरायटी है। एक्वा कल्चर, अब समझ जाओ यार एक्वा कल्चर है, एक्वा कल्चर इसमें क्या आएगा, इनके डेफिनेशंस पे बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, आपको पूछा जाएगा। एक्वा कल्चर इज नथिंग बट फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। तो इसमें ये वाइल्ड वाला कंसेप्ट नहीं आएगा कि आप जाके नहीं कहीं से लेके आ रहे हो, फिशेज अपने आप बड़ी हुई हैं, आप जस्ट जा रहे हो और उन्हें उठा के ले आ रहे हो जाल में फंसा के, नहीं, वो नहीं है। एक्वाकल्चर इज डिफरेंट, एक्वाकल्चर इज लाइक फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सिर्फ एनिमल्स नहीं, यहाँ पे प्लांट्स भी आ जाएंगे, एक्वाकल्चर में दोनों आ जाते हैं जी। एक्वेटिक एक्वाकल्चर में दोनों आ जाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। ठीक है, एक्वाकल्चर में आपके दोनों आ गए। ठीक है, इनकी फार्मिंग करना मतलब इनको
प्रॉपर स्टार्टिंग से ग्रो करना, इनको फूड देना, इनका न्यूट्रिशन चेक करना, डिजीज चेक करना, इनको बढ़िया फीड देना ताकि ये ग्रो करें साइज में, एंड देन सेलिंग देम इन एवरीथिंग। क्यों करते हैं ये सब? मतलब एक्वाकल्चर क्यों करते हैं? एक्वाकल्चर क्यों करते हैं? गुड क्वेश्चन। पैसा पैसा पैसा, मनी मनी, राइट। टाइम नहीं, टाइम ऐसा नहीं, टाइम नहीं ना। इट इज मोर डिफिकल्ट टू गो एंड कैच फिशेस इन सी। वो ज्यादा डिफिकल्ट है, नहीं मिलती है, जाल फंसाते रहो, वहीं घूमते रहो। दैट इज मोर डिफिकल्ट। एंड इंस्टेड आपने एक छोटा सा स्विमिंग पूल बना दिया, बढ़िया सा पॉन्ड बना दिया, स्विमिंग पूल नहीं, स्विमिंग पूल नहीं बोलेंगे उसे, एक पॉन्ड बना दिया, उसमें आपने ही रेयर कर रहे हो, आपको पता है भाग के कहाँ जाएगी, वहीं रहने वाली है। समझ रहे हो? तो ये इजी है, बल्कि ह्यूमन कभी भी अपना काम कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा, है ना, उसे इजी करेगा। इसीलिए उसने एक्वा कल्चर किया है, बिकॉज ये कल्चरल चीज है, इसीलिए नाम देखो कल्चर है, आप उसे कल्चर कर रहे हो, आप खुद उगा रहे हो, ठीक है, ताकि आपको भागना ना पड़े, आपको जाके बाहर सी में नहीं जाना पड़े, वो महंगा भी तो है। सी में जाओ, बोट वोट लेके, बोट गिर गई वेगई, कुछ हो गया, बहुत सारे लफड़े हैं उसमें, ठीक है, तो उसमें नहीं फंसेंगे हम। एक्वाकल्चर इज योर नॉर्मल फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। पिसिकल्चर, पिसिस स्पाइसेस से आता है, नाम याद रखना। तो पिसिकल्चर डील विद स्पेसिफिकली फार्मिंग ऑफ फिश, राइट, स्पेसिफिकली फार्मिंग ऑफ फिश। पिसिकल्चर इज फिश, एक्वाकल्चर इज बोथ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स का ग्रो करना। ब्लू रेवोल्यूशन आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन तो सबको पता होगा, ब्लू रेवोल्यूशन भी आया था, एक नाम की चीज। इसमें क्या होता, वर्ल्ड वाइड हमने इंक्रीज किया था एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिकॉज इनका जो न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है, न्यूट्रिशनल फैक्ट होता है, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स इनके जो रिलीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो इनकी स्किन होती है, दे आर यूज्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ बैग्स, ठीक है, बैग्स वगैरह में यूज होती है, इनकी स्किन बहुत ही रफ एंड टफ होती है, स्केल्स स्केल्स वाली स्किन। देन यू हैव इनके एसेंशियल ऑयल निकलते हैं, ऑयल इनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल निकलता है, जो बहुत ही ज्यादा एनरिच्ड होते हैं विटामिन एंड न्यूट्रिशन से, तो वो आप निकालते हो। देन अगेन ईटिंग ईटिंग खाने के लिए तो आप डेफिनेटली निकालते ही हो। तो ये सारी चीजों को इंक्रीज करने के लिए आपने ब्लू रेवोल्यूशन करा था, आपने ब्लू रेवोल्यूशन करा था। हाँ जी, क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस पे। हाँ जी, फ्रेश वाटर फिश बता दो कौन है, तो ये कटला, रोहू, मृगल, ठीक है, इंडियन से नाम है ना, इंडियन से नाम लग रहे हैं, कटला, रोहू, मृगल। हाँ, तो ये फ्रेश वाटर एडिबल फिश हो गए, इंडियन ही सारी, बट ये फ्रेश वाटर है, मतलब आपके पास में मिल जाएगी। देन यू हैव मराइन एडिबल फिशेस लाइक सार्डिन, हिल्सा, पॉम्फ्रेट एंड मैकरल। तो ये सारी होगी आपकी मरीन फिश, मरीन एडिबल फिश। फ्रेश वाटर यानी है भाई अपने नॉर्मल सॉल्टी वाटर में नहीं रहती, आपके रिवर पॉन्ड वगैरह में रहती है, कटला, रोहू, मृगल। मरीन वाटर इज लाइक दे स्टे इन सी, सॉल्टी वाटर में। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है, कॉड लिवर ऑयल होता है, एक फिश कॉड लिवर ऑयल रिलीज होता है। शार्गिन इज योर शार्क की स्किन, इससे बढ़िया बैग वैग बनते हैं, चेक कर लेना, महंगे होते हैं बहुत, वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, बट आजकल होते भी हैं, नहीं होते, अलाउड है कि नहीं पता नहीं, अलाउड होगा यार, शार्क को क्या ही, कौन ही नुकसान पहुंचाएगा। फ्रेश वाटर फिशेज आर चीपर देन मरीन, पता नहीं है, मैं तो खाता नहीं, आई एम वेजिटेरियन, ना मैंने कभी खरीदने की कोशिश की, ठीक है। सो ये तो आप लोग ही जानो कि भाई फ्रेश वाली है। हाँ, आई नो दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, ये मैंने सुना है मेरे दोस्तों से, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, पॉम्फ्रेट जिसका नाम होता है, महाराष्ट्र में पता नहीं इसको कुछ तो बोलते हैं, हाँ जी कुछ तो बोलते हैं इसको, बट दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। पतली सी होती है ऐसे एकदम फ्लैट, समझ गए ना, आप लोगों ने देखी हुई है। तो पॉम्फ्रेट इज वेरी एक्सपेंसिव, मैकरेल इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, ये देसी है यार, ये देसी इंडियन है, ये सस्ती मिलती होंगी। हाँ, जो भी है, तो आपने नाम तो लिखा है। हाँ जी, ठीक है, फिशरीज में ही हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं, इतना याद रखना। और ये नाम मत कंफ्यूज कर देना, ये उल्टा सीधा मत कर देना, ये हवा मत कर देना, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं इस पे प्लांट ब्रीडिंग पे, फिर हम आ जाते हैं प्लांट ब्रीडिंग पे। एनिमल्स का खत्म हो गया, ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग उतना ही था। प्लांट ब्रीडिंग आ जाते हैं, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, आपको बस वैरायटी के नाम याद रखने हैं। प्लांट ब्रीडिंग देखो यार, क्यों किया आपने प्लांट ब्रीडिंग? सेम चीज है यार, एनिमल पे डिपेंडेंट है, जब हम उस पे ऑफलाइन क्लासेस होंगी, आई डोंट नो क्यों ऑफलाइन क्लासेस रखनी है आपको, ऑनलाइन सही तो है, क्यों तकलीफ देना चाहते हो मुझे? और बढ़िया ऑफलाइन घर पे बैठे बैठे एंजॉय करो, साथ में टीवी देख लो और साथ में क्लास भी हो जाती है।
अगर रिक्वायर्ड होगी तो डेफिनेटली कर लेंगे कभी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आने में। ठीक है, मैं तो यहीं भटकता रहता हूँ आसपास। ठीक है, हाँ जी, प्लांट ब्रीडिंग थोड़ा सा टाइम है, जितना होता है एटलीस्ट ये 5 पॉइंट्स तो पढ़ लेते हैं ऊपर के, मतलब 5 मिनट ऊपर हो गए तो भी क्या है, आप लोग अच्छे लोग हो, भले लोग हो, रुक जाओगे 5 मिनट तो, है ना। अभी कहाँ 8 बजे किसी को डेट पे जाना है, घर पे बैठ के खाना ही खाना है, तो थोड़ी 5 मिनट बाद खा लेना। ठीक है, हाँ जी, प्लांट ब्रीडिंग हम देख रहे थे। प्लांट की आप ब्रीडिंग क्यों करवाते हो भाई? सिंपल लॉजिक है, कोई पूछ ले भाई प्लांट की ब्रीडिंग क्यों करानी है, उग तो रहा है बढ़िया, उग रहा है भिंडी, उग रहा है आलू गोभी टमाटर, क्यों ब्रीडिंग करवानी है? अरे नहीं सर, एक मार्केट में टमाटर है जो 15 रुपए किलो है, एक मार्केट में टमाटर है जो बेबी टमेटोज जिन्हें आप बोलते हो, देयर आर 60-70 रुपीज kg, राइट? डिफरेंस है ना, डिफरेंस है ना, क्यों? दिस इज डिफरेंस इज द क्वालिटी, डिफरेंस इज द यील्ड, कितने एरिया में आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, 1 हेक्टर में आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, 1 हेक्टर में आप कितनी बढ़िया क्वालिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उतनी क्वालिटी, जितनी बढ़िया क्वालिटी उतना बढ़िया इज दी रिटर्न, उतना बढ़िया ही आप मनी, उतना ही पैसा आपको मिलेगा, उतना ही न्यूट्रिश। और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, इट इज नॉट एवरीवेयर रिलेटेड विद मनी कि आप अच्छी वैरायटी दोगे अर्न गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, नो, इट इज ऑल्सो थिंग इज ब्रीडिंग आप इसलिए भी करते हो सो दैट यू गेट अ गुड क्वालिटी ऑफ थिंग्स। जब आप एक सुपीरियर क्वालिटी ऑफ मेल एंड फीमेल काउस का मीटिंग कराते हो, उसका जो आउटकम होता है इज लाइक द गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क, मतलब उस मिल्क में बढ़िया प्रोटीन रिच होगा, सारे एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, सब होगा, वो चीजें हैं। सेम गोज विद प्लांट्स एज वेल, आप उनकी ब्रीडिंग कराते हो, अच्छी वैरायटी ऑफ प्लांट्स की लाइन प्रोड्यूस करते हो, राइट? सो एज टू गेट अ वेराइटी विच इज डिजीजलेस, जिसको इजीली डिजीज ना लगे। यार देखो, प्लांट है, एंटायर फार्मर कम्युनिटी इज डिपेंडेंट ऑन देम, है ना, अपने फार्म में लगा दिया, ठीक है, कोई घटिया सी वेराइटी आपने उठा के निकाल दी, अब भाई उसमें क्या हो गया, पेस्ट हो गया, पेस्ट हो गया, आपकी पूरी फसल खराब हो गई। एक बार टाइम निकल गया, 1-2 महीने हो गए उस क्रॉप को, उसके बाद आप वापस से इसको सो नहीं कर सकते, सिंपल लॉजिक है, उसका वापस आप सो नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी साइकिल ही खत्म नहीं होगी, इतने में मानसून, वो क्या बोलते हैं, इतने में सीजन बदल जाएगा। और सीजन स्पेसिफिक होते हैं, आपको पता ही है, क्रॉप्स, है ना, सीजन स्पेसिफिक होते हैं, कुछ सिर्फ विंटर में उगते हैं, कुछ सिर्फ, ये पता है राबी एंड खरीफ, आपको पता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा है, राबी एंड खरीफ, कुछ समर वमर में उगते हैं, कुछ विंटर में उगते हैं। तो इनका सोइंग सीजन अलग है, इनका ग्रोइंग सीजन अलग है, इनका जो आप विड्रॉ करते हो, इनसे चीजें निकालते हो, दैट इज अलग। सो वो सारी चीजें इस पर डिपेंड करती है। तो प्लांट ब्रीडिंग आप इसलिए कराते हो सो दैट आपको एक सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिल जाए, कि पल्सेस हो तो उनमें बढ़िया न्यूट्रिएंट्स हो, है ना, ठीक है। और जो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ये गुड अच्छे साइज में हो, अच्छा न्यूट्रिशनल कंटेंट हो इनमें, दे शुड बी डिजीज लेस, ज्यादा खराब नहीं हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, एंड ऑल दोज थिंग्स, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो इसमें आप कैसे करते हो प्लांट ब्रीडिंग, ये इसके अब इसको पूरा ये ना, ये इसको बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है आपके उसमें एनसीईआरटी में, पैराग्राफ वाइज दिया हुआ है, वो भी एक बार पढ़ लेना। ओवरव्यू है, कलेक्शन ऑफ वेराइटीज। अब आप क्या करोगे यार, आपने देख लिया भिंडी दिख रही है, आपने यहाँ पे भिंडी देखी, यार इसमें ये पर्टिकुलर डिजीज हो रहा है, मैं ये बहुत ही परेशान हूँ इस भिंडी से, ठीक है, मुझे इसको अच्छा बनाना है। आप देखोगे यार यहाँ इसकी भिंडी बहुत बढ़िया जा रही है, तो उससे पूछोगे हाँ भाई यार तूने कौन सी भिंडी लगाई, तूने कहाँ से सीड लिए, है ना, बिकॉज देयर आर मेनी कंपनीज जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स बनाती है, और जो सीड बनाने का प्रोसेस है एंटायरली डिफरेंट, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी कैसे बनता है वो वैरायटी, फिर भी हम बताएंगे थोड़ा आगे चल के ग्रीन रेवोल्यूशन में कि कैसे किया था। यही ब्रीडिंग की वजह से ही बनती है डिफरेंट वैरायटी, बट बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है उसका। क्या होगा कि आप देखोगे यार, हाँ यार मेरे वाली भिंडी में डिजीज लग रहे हैं, इसकी भिंडी में नहीं लग रहे हैं, आप क्या करोगे, आप बोलोगे यार चल एक काम करते हैं, बट इसकी जिस भिंडी में जिसमें डिजीज लग रहे हैं, बट इसकी भिंडी जिसमें डिजीज लग रहे हैं, उसकी जो भिंडी प्रोड्यूस हो रही है, दे आर वेरी बिग इन साइज, वेरी गुड क्वालिटी, बट प्रॉब्लम है उसमें डिजीज लग रहे हैं। इंस्टेड आप इधर बाजू वाले की देखोगे, उसको बोलोगे तेरे में डिजीज नहीं लग रहे, बट तेरी भिंडी नहीं उग रही ढंग से, तेरी भिंडी का साइज ही इतना सा है, छोटा सा है ना, फिर क्या फायदा, तेरे को उतना रिटर्न मिलेगा ही नहीं, है ना, न्यूट्रिशन कंटेंट नहीं है तेरी भिंडी में। तो तुम बोलोगे यार एक काम करते हैं, अपन दोनों करवा देते हैं इनका पॉलिनेशन, आपस में इनकी ब्रीडिंग। भाई एनिमल्स में ब्रीडिंग करवाना इज वेरी इजी यार, यहाँ से स्पर्म उठाओ यहाँ डाल दो, इनमें तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है ना, इनमें आप, इनका बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, डिफिकल्ट नहीं है, नेचुरल है यार, हो जाता है अपने आप।
यहाँ से इस भिंडी के क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स उड़े, इस भिंडी के जाके फर्टिलाइज कर गए। ये आपने करवाया है, ऐसे हो नहीं गए, आपने करवाया। ये बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स होती है कि इसकी भिंडी को कोई और ना आके पॉलिनेट कर जाए, तो इसके सारे फ्लावर्स पे आप प्लास्टिक की थैली बांध देते हो कि और पोलन ना आ जाए। आप बढ़िया धीरे से खोलोगे प्लास्टिक और आपको डिजायर्ड पोलन ही उसके अंदर डालोगे, समझ रहे हो? तो ऐसे वेराइटीज निकलती। तो कलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ वेराइटी ऑफ द क्रॉप आपको लेना है। देन इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। आपने वैरायटी सेलेक्ट कर ली, चलो इसकी भिंडी ले ली, इसकी भिंडी ले ली, उसमें बहुत सारी भिंडियां लगी हुई है। आप कौन सी वाली भिंडी लें, कौन से वाले प्लांट्स को लें जिनको इनमें आप हाइब्रिडाइजेशन कराओगे, जिनकी ब्रीडिंग कराओगे, ठीक है? चलो वो भी आपने सेलेक्ट कर लिया, इवेल्युएट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब उनमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाना है, इसके पोलन्स यहाँ डालने हैं, राइट, ताकि नई वेराइटी प्रोड्यूस हो, ठीक है? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड प्लांट्स, जो सिलेक्टेड प्लांट्स आपने लिए उनमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराओ। हाँ जी, उसके बाद क्या करोगे, सिलेक्टिंग एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। हाँ जी, अब आपने पॉलिनेशन करवा दिया, ठीक है, यहाँ पर सब प्रोसेस हुआ। फिर इस पर्टिकुलर प्लांट में जहाँ पे पॉलिनेशन हुआ है, अब क्या इसने फ्रूट रिलीज किया, फ्रूट के अंदर क्या होंगे, इस सीड होगा। सीड क्या है, सीड इज योर नेक्स्ट जनरेशन, यस और नो, सीड इज योर नेक्स्ट जनरेशन। अब आप बोलोगे ये सीड जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस करेगी, ये पर्टिकुलर सीड, उसमें आप चाहोगे, आपकी उम्मीद ये होगी कि ये पर्टिकुलर जो सीड है इसमें इसके कैरेक्टर आ जाए यहाँ से कि भाई ये होगा क्या, गुड क्वालिटी गुड साइज ऑफ भिंडी। और यहां से आप ले लोगे कि भाई डिजीज रेजिस्टेंट भिंडी। तो ये जो सीड आपका जो नया प्रोड्यूस हुआ है, इसको आप जब बोओगे तो जो वैरायटी निकलेगी, नॉट ऑल ऑफ देम बट 100 में से एटलीस्ट 70% तो होगी जो आपकी सुपीरियर क्वालिटी वाली भिंडी निकल के आएगी। तो इसी को बोलते हैं हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? फिर आप क्या करोगे, बहुत सारी, क्योंकि आपने एक प्लांट को लेके उसमें पॉलिनेशन नहीं करा, आपने 1 हेक्टर 10 हेक्टर 100 हेक्टर ऑफ एरिया में भिंडी को क्रॉस करवाया, सो दैट आपको उतनी सीड्स मिले। फिर आप उस सीड को क्या करोगे, टेस्ट करोगे, आप उगाओगे और देखोगे अच्छा 70% बढ़िया रेट है, 70% डिजायर्ड प्लांट्स आ रहे हैं। फिर आप उसे रिलीज कर दोगे, अनकमर्शियलाइज कर दोगे, मार्केट में रिलीज कर दोगे, हाँ ये रही हमारी भिंडी, ये खाओ, बढ़िया है, डिजीज भी नहीं लगता इस भिंडी को, जल्दी भी उगती है, और क्या बोलते हैं, बढ़िया गुड साइज ऑफ भिंडी भी एज वेल। भिंडी इज एन एग्जांपल, डोंट गेट टू इमोशनल विद भिंडी, ओके? सो दिस वाज योर प्लांट ब्रीडिंग ओवरव्यू। इसको पढ़ेंगे बाद में, अभी 8 बज चुके हैं, पता नहीं आज लिंक बहुत लेट आई थी मेरे पास, उसके बाद मेरा ये प्रॉब्लम हो गया। टेस्ट, टेस्ट तो यार बनाने के ऊपर है, टेस्ट कच्ची तो कैसी लगेगी, कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं भैया? टेस्ट तो भाई तुम, मैं बनाऊंगा तो खाने लायक नहीं होगी, सिंपल लॉजिक है। टेस्ट तो आपके हाथों में है, नथिंग एल्स, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस संडे इफ यू गेट वन। संडे ही चल रहा है वैसे तुम्हारा, ओके, एंजॉय, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू सो मच। आई नो तुम्हारे को संडे को भी ऑफ नहीं है, एंजॉय करो फिर भी, गुड बाय, थैंक यू।